नमस्कार। अभिनव पहल 3.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। शिक्षा, जब इस शब्द को कोई भी कहता या सुनता है तो इसके पीछे खड़ी होती है एक मजबूत नींव जिसने सबको बनाया है। भविष्य की उम्मीद बसी है इस शब्द में। बदलते वक्त के साथ शिक्षा का स्वरूप ज़रूर बदला है, लेकिन इसकी मूल भावना आज भी उसी तरह से कायम है जैसे हमेशा से थी। आज इस दौर को सोशल मीडिया का दौर कहा जाता है। इस दौर को डिजिटल युग भी कहा जाता है। ऐसे में शिक्षा भी अब डिजिटल हो चुकी है। इस दौर में बात करेंगे शिक्षा के नए स्वरूप की। हम बात करेंगे शिक्षा सेतु प्लेटफॉर्म की। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो असम के स्कूलों, स्टाफ और छात्रों के बारे में 360 डिग्री जानकारी प्रदान करता है। ये प्लेटफॉर्म दिन प्रतिदिन होने वाले प्रशासनिक कार्यों के लिए एक सिंगल विंडो के रूप में जाना जाता है। ये प्लेटफॉर्म विभाग को समय पर और डेटा संचालित फैसले लेने में भी सक्षम बनाता है। ये एक AI संचालित प्लेटफॉर्म है जो चेहरे की पहचान तकनीक के आधार पर करता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने असम के शिक्षा सेतु ऐप को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा है। आज हम बात करेंगे कैसे शिक्षा सेतु असम के शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश, आप निदेशक हैं समग्र शिक्षा मिशन के। संजय दत्ता जी, आप कार्यकारी निदेशक हैं समग्र शिक्षा मिशन के। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं तीसरे मेहमान, और आप इस ऐप को विकसित करने वाले राजा श्रीनिवास नंदीगम जी, जो MD हैं RNITSS लिमिटेड के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। चर्चा की शुरुआत के पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। Reformation of the educational journey through innovative administrative policies, thus indoctrinating the posterity, is the dream of the progressive mind of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. To transform this dream into reality, strong steps have been taken by the Assam government under the visionary leadership of Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma. An innovative and an apt use of scientific and technological advancement by the Department of School Education, Government of Assam, an online portal called Shiksha Setu Assam has been introduced. It is a unique platform empowering the department with 360-degree information on schools, teachers, staff, and students. It also serves as a single source of information for day-to-day operations. The primary goal of this initiative is to instill accountability and enhance the efficiency of education system, establishing a benchmark for excellence. The key components of this web application are school management, teacher management, student management, student academics, attendance management, predictive analytics, and dashboard reports. The key components of the mobile application are one-time enrollment, self-attendance, portrait attendance, landscape attendance, and leave application. Before the initiation of this project, the Assam government faced numerous challenges against the smooth functioning of the education system. The issue of proxy teachers and teacher absenteeism posed a great hindrance in perpetual improvement in education sector. Pictures of the teachers were hung previously in the school premises, easing identification. But after the introduction of Shiksha Setu initiative, digital identification has become more precise as it captures daily attendance within 750 meters of the geofencing area of the school campus, thus enabling real-time facial recognition based on geotagged attendance. Teachers are now not only coming to school regularly but also in time. Another challenge was to restrict the footfall of the fake or ghost students.
This intervention is helping to identify duplicate or ghost students. With the aid of this application, around 4 lakh students pertaining to this group has been reduced. Prior to the advent of this innovative web application, transfer of students from one school to another included a number of manual and tedious formalities which used to create a lot of problems for the guardians. An innovative feature called Dropbox enables the transfer of students from one school to the other within the state. This process helps in generating an online transfer certificate, ensuring a seamless transfer of student data to other schools without manual intervention. This portal incorporates features for monitoring the retirement of teachers and staff using predictive analysis over the next 3 to 24 months, analyzing probable vacancies, accessing pupil-teacher ratio, and evaluating subject-wise teacher utilization. This eventually helps in formulating recruitment planning. The portal also offers predictive analysis regarding school amalgamation in the near future. The dropout rate of the students were quite alarming prior to the introduction of this new initiative. This portal helps in detection of probable dropouts when the students start absenting frequently for more than 2 to 4 weeks. Early prediction of dropout students can help in bringing them back to the school system. For the first time in India, Assam has pioneered the use of artificial intelligence-based group facial recognition technology to establish a real-time management information system. Through this web application, the department manifests a panoptic view, thus making all activities within the app lucid to the administration. To ensure this, a workforce consisting 30 officials have been appointed to monitor all-round activities. May this ingenious stride culminate new beginnings and bring forth a new dawn to posterity. तो आपने देखा कि असम में शिक्षा सेतु दरअसल किस तरह से बच्चों, स्कूल और अभिभावक के बीच एक पुल का काम कर रहा है और कई राज्यों के लिए एक मिसाल भी पेश कर रहा है। फिलहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश हैं जो इसके जनक हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश, कैसे ये विचार आपके मन में आया कि इस तरह का ऐप लॉन्च किया जाए जो आज सही मायने में असम में जो देखने में आया है कि एक क्रांतिकारी रूप ले रहा है? एक्चुअली जब हम इसका प्लानिंग कर रहे थे उस समय कई सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही थी। जैसे हमें रियल टाइम हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं था। उसके अलावा प्लानिंग के अंदर में हमें डेटा की ज़रूरत होती है। कई सारे इश्यू आ रहे थे कि टीचर्स है वो स्कूल में नहीं जा रहे हैं, स्टूडेंट्स है गोस्ट स्टूडेंट्स के हमारे पास में जो है वो कई सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। इन सभी को देखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों नहीं हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम में कितने विद्यार्थी हैं और शिक्षक जो है वो वास्तव में स्कूल जा रहे हैं, समय पर जा रहे हैं, उसको भी हमें ये सुनिश्चित करना था। तो इसको देखते हुए हमने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम का यूज़ किया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ जो है वो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का भी उपयोग करता है। संजय जी, चूँकि आप लगातार आपने करीब से इसका अध्ययन किया, तो मूल मकसद के बारे में अगर हमारे दर्शक जानना चाहें तो इसके पीछे क्या मूल मकसद रहा इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे? बेसिकली इसका मेन और इंटेंशन था वो रियल टाइम अटेंडेंस का था, इनिशियली फॉर बोथ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। उसके अलावा हम लोग वो चाहते थे कि जो प्रॉक्सी देते हैं टीचर्स, स्कूल में ना जाते हुए अटेंडेंस देते हैं, वो एलिमिनेट करने के लिए। एट द सेम टाइम्स जो स्टूडेंट एक्चुअली नहीं है, रोल में है लेकिन एक्चुअली नहीं है, वो जो घोस्ट स्टूडेंट बताते हैं, वो घोस्ट स्टूडेंट को एलिमिनेट करने के लिए। और उसके अलावा हम लोग एक सोच रहे थे जो एक बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जब जाते हैं एडमिशन के लिए, उनका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो बहुत एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस था, तो वो सीमलेस बनाने के लिए भी शिक्षा सेतु का ऑब्जेक्टिव था। एट द सेम टाइम हम लोग एक एनालिसिस कर सकते हैं जो एक्चुअली स्टूडेंट टीचर्स कितना है। एट द सेम टाइम वी नो द रिटायरमेंट एज ऑफ द टीचर्स थ्रू शिक्षा सेतु। सो वी एक प्लानिंग कर सकते हैं टीचर कितना है, क्या है, कब टीचर क्या लगे, कब हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करें, वो टाइप का था। और एट द सेम टाइम ड्रॉप आउट के लिए एक हम लोग देखते हैं, हम लोग का एक सिस्टम में ड्रॉप आउट ऑफ स्टूडेंट्स हैं
तो वो ड्रॉप आउट एलिमिनेट करने के लिए भी कुछ प्रोसेस तो चाहिए होगा, जो एनालिसिस चाहिए होगा, रियल टाइम एनालिसिस चाहिए होगा, क्या किस कारण से ये ड्रॉप आउट है। तो ये सिस्टम से हमको पता चलता है ये बच्चे कितना दिन से स्कूल में नहीं आए हुए, एब्सेंट कितना दिन तक, तो हम लोग इंटरवेंशन कर सकते हैं, तो स्कूल बच्चे को फिर से वापस ला सकते हैं वो सिस्टम में, सो दैट द रिटेंशन रेट इंक्रीजेस। तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव्स है इसका। डॉक्टर प्रकाश, जैसे संजय जी ने बताया, तो ये ऐप, अगर मैं बात करूं, जो नकली छात्र हैं या जो प्रॉक्सी शिक्षक की बात जैसा आप कर रहे हैं, तो कैसे वो इस काम करता है और उनकी समस्याओं को किस तरीके से एड्रेस करता है? कि ये जो है ऐप है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो फेस को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। फेस पे कई सारे पॉइंट्स, अराउंड 72 पॉइंट्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। तो इसमें चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो शिक्षक हो, इसका एक बार रजिस्ट्रेशन होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। तो जब हमने एक बार सब विद्यार्थियों का जब रजिस्ट्रेशन किया, तो हमने ये पाया कि करीबन 4 लाख विद्यार्थी है जिसका आइदर वो सिस्टम में नहीं थे या उसका रजिस्ट्रेशन 2 बार हो गया था। तो इसकी वजह से हम 4 लाख जो घोस्ट स्टूडेंट कहते हैं उसको हमने आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा जो सभी शिक्षक है उसका एक बार रजिस्ट्रेशन इस सिस्टम के थ्रू हुआ। इसमें ये हमने कहा गया कि जो विद्यालय का जो प्रधान अध्यापक है वो उस शिक्षक का जब एंट्री हो जाएगा तो वो उसको सर्टिफाई करेगा कि ये हमारा टीचर है। तो ये हमने किया। इसके बाद में ये किया गया कि इसको पूरे को जियो फेंसिंग किया गया, ताकि स्कूल का एक पर्टिकुलर रेडियस, जैसे 750 मीटर्स का हमने इनिशियली किया था, आज की तारीख में हमने उसको रिड्यूस करके 500 मीटर कर दिया है। यानी उसकी 500 मीटर की परिधि के अंदर में शिक्षक को और विद्यार्थी को आना होगा अपनी अटेंडेंस देने के लिए। तो डेली अब ये नहीं होता है कि अपन कुछ दिन तक एब्सेंट रहे फिर एक दिन आकर के हमने रजिस्टर के अंदर में अपनी अटेंडेंस दे दी। अब आपको आना पड़ेगा स्कूल की उस 500 मीटर की परिधि के अंदर में और अपनी अटेंडेंस देनी होगी। दूसरा, शुरुआत में हमने सिर्फ एक समय का, आने के समय का अटेंडेंस दिया था। अब हमने आने के साथ साथ जाने का भी कर दिया है। तो दिन में शिक्षक को 2 बार अपनी जो है वो अटेंडेंस इस सिस्टम के थ्रू देनी होती है। तो एक तरीके से काफ़ी मददगार साबित हो रहा है जी। अब यदि आप कहें तो पेरेंट्स की तरफ से भी हमें कई सारे कॉल आ रहे हैं कि अब हमारे शिक्षक जो है, ये शिक्षक इतने समय से नहीं आ रहे थे लेकिन अब वो रेगुलर हो गए हैं। और समय, जैसे आपने हमारी वीडियो में भी देखा होगा, न केवल शिक्षक स्कूल जा रहे हैं परंतु समय पर भी जा रहे हैं। तो वो दोनों ही हमें फ़ायदा हो रहा है। तो संजय जी, क्या जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो वो भी इस एआई जो ऐप है इसके ज़रिए से संभव हो पा रहा है क्या? एक्चुअली पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग तो एक नॉर्मल प्रोसेस में होता है। पीटीएम जो होते हैं वो एक नॉर्मल, एक स्पेसिफिक, लेकिन शिक्षा सेतु से ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स और टीचर का एक पेरेंट्स को पता चल रहा है। एक्चुअली टीचर्स, सर जो बता रहे थे, टीचर्स एक्चुअली समय पे आ रहे हैं, ठीक समय पे आ रहा है, विद इन द पेरिफेरीज, क्योंकि दे हैव टू गिव द अटेंडेंस विद इन द पेरिफेरी एरिया। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज दैट स्टूडेंट एंड टीचर्स का जो एक गैप हो रहा था, द टीचर्स वेर नॉट अटेंडिंग द स्कूल्स ऑन द रेगुलर बेसिस, स्टूडेंट्स वेर नॉट कमिंग टू स्कूल्स। So through PTMs, we were trying to bring the teachers and students together, and so ensure that the parents get involved in the education जी process. जी जी। तो हमारे साथ ये जो AI ऐप है शिक्षा सेतु, इसको दरअसल विकसित किसने किया है और जो जिन्होंने एक तरीके से मदद की है इसमें, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजा श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर मैं फेशियल रिकॉग्निशन की बात करूं जो है, तो उसको आपने किस तरीके से विकसित किया और किस तरह की चुनौतियां आपको आई ये ऐप जो एआई आधारित है विकसित करने में? हम लोग ना पहले असम का शिक्षा सेतु इम्प्लीमेंट करने से पहले छोटी छोटी हम लोग कर रहे थे कि म्यूनसिपालिटीज में कर्मचारियों का अटेंडेंस करने के लिए इम्प्लीमेंट किया था कई और स्टेट पे। बट लेकिन जब हम लोग शिक्षा सेतु के लिए बात हुई थी, असम का एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उसके पास कंप्लीट क्लैरिटी था कि क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। तो वो बहुत है ना, वो बहुत हमें हेल्प हुआ था कि हम अपना सोल्यूशन सही तरीके से इंप्लीमेंट करने का। तो एआई में हमने तो बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन किए थे, बहुत सारे एक्सपर्टीज है। बट जब अपने को रिक्वायरमेंट सही पे मिलता है, जैसे कि बिफोर शिक्षा सेतु से पहले था कि एक आदमी को एक आदमी के अगेंस्ट कंपेयर करते थे, 1:1 बोलते हैं उसके हम।
बट जब 1:n एंड n:n का रिक्वायरमेंट फर्स्ट टाइम इन इंडिया हमें असम से मिला था, तो उसके लिए हम लोग वापस अपना R&D लैब पे गया था, वो इम्प्लीमेंट किया था, हम लोग रोल आउट किया था। तो जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था, क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो ये ऐप ओपन करके शिक्षक ने एक एक बार ऐप ओपन करके पूरा कैमरा को एक बार क्लास में रोल आउट किया, तो जितने सारे स्टूडेंट्स है बच्चे हैं वो फ्रेम में फिट हो सकता है, वो सारे के सारे बच्चों का अटेंडेंस एक ही टाइम पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। वैसे देखा तो 40 लोगों का 1 to 1.5 मिनट में हम लोग अटेंडेंस लेना, वो जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड इन लेस देन 1 to 1.5 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। पहले प्रॉब्लम होता था कि रोल कॉल और कोई भी टेक्नोलॉजी लाते हैं हम लोग, हार्डवेयर यूज करें या दूसरे टेक्नोलॉजी यूज करें हम लोग, वो ज्यादा टाइम लगता है या ज्यादा पैसा लगता है, मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता था उसका हार्डवेयर खरीदने में एंड ऑल। जी बट जी। ये फर्स्ट टाइम जब असम एजुकेशन डिपार्टमेंट सोचा था कि एक मोबाइल ऐप के जरिए से इसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड ना हम लोग वो उसका रिक्वायरमेंट्स मिला था और हमारा एक्सपीरियंस हम लोग जोड़ के ना हम लोग एक जो सोल्यूशन बनाया था, दैट्स द होल रीजन इट्स विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट हम लोग ये सोल्यूशन निकल पाया था। और दैट्स व्हाई एवरीवन अक्रॉस द स्टेट सारे के सारे यूज कर पा रहे विदाउट एनी इश्यूज, विदाउट एनी कंप्लेंट्स एंड ऑल। दैट्स हाउ दिस FRS फर्स्ट टाइम इन इंडिया रिवॉल्यूशनाइज हुआ था। अभी सारे के सारे स्टेट्स जो हम लोग असम में इंप्लीमेंट किया है वही रिप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। जी श्रीनिवास जी, एक सवाल उठता है चूंकि आप इसके सूत्रधार रहे हैं, ये कैसे आप इंश्योर करते हैं कि मान लीजिए आपका फेस आइडेंटिफाई करना है और गलती से मेरा फेस आइडेंटिफाई हो गया, तो मैं बात कर रहा हूँ जो फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको आप इंश्योर दरअसल कैसे करते हैं AI अपने इस ऐप के जरिए? राइट, FRS में ये जो चीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, खास चीज होता है, फॉल्स एक्सेप्टेंस एंड फॉल्स रिजेक्शन बोलते हैं, और फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। जो होता है कि जिसको आइडेंटिफाई करना था उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और जिसको आइडेंटिफाई नहीं करना था उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए AI एल्गोरिदम जो है वो इवॉल्विंग होना चाहिए, हर दिन उसके बारे में सीखना चाहिए, और जितना उसको ट्रेनिंग AI का खासियत ये होता है कि जितना हम लोग ट्रेनिंग कर सकता है उसको, उतना एफिशिएंटली वो कर सकता, वो परफॉर्म करता है। तो जब ये हम लोग टू एंश्योर दैट ना ये फॉल्स एक्सेप्टेंस, फॉल्स रिजेक्शन और फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स जी नेगेटिव जी। रिड्यूस करने के लिए हम लोग ना अपना एक्सपीरियंस है, अभी तक हम लोग 2 बिलियन फेसेस आइडेंटिफाई करते, 200 करोड़ के ऊपर हम लोग फेसेस किए थे। तो हर रात अपना एल्गोरिदम ट्रेनिंग होता है, डेली ट्रेनिंग होता है। जो ट्रेनिंग हुआ था वो एल्गोरिदम हम लोग शिक्षा क्षेत्र में फिर से डिप्लॉय करते हैं उसके लिए। तो ये रेगुलर लर्निंग से हुआ, जो भी है हम लोग जो भी आइडेंटिफाई किए थे वो लगातार कोशिश से हम लोग ये एक्यूरेसी पे आया था कि हम लोग ये फॉल्स एक्सेप्टेंस जो है 1 in 10 लाख, 1 in 1 million बोलते हैं, 10 लाख में एक सिनारियो प्रोबेबिलिटी है। और फॉल्स रिजेक्शन है, जो बंदे को आइडेंटिफाई करना तो वो नहीं कर पा रहे हम लोग, वो 1 in 1 लाख है। 1 in 1 लाख और 1 in 10 lakhs, ये 10 लाख में एक और 1 लाख में एक फर्क क्यों इसलिए बना रखे, अगर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ जिसको आइडेंटिफाई करना तो वो दोबारा कोशिश कर सकता है। ये सारे के सारे चीज एज कंप्यूटिंग पे चलता है, सारे के सारे मोबाइल ऐप पे चलता है, इसका इंटरनेट की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ओम प्रकाश, जैसा कि श्रीनिवास जी कह रहे थे, आपने सुना, इस ऐप की एक ख़ास बात यह है कि जो पेरेंट एक क्लिक बटन के एक क्लिक पे वो अपने बच्चों का एडमिशन भी करा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आप समझाइए। जी, इसमें हमने एक ड्रॉप बॉक्स का एक सिस्टम किया हुआ है। जैसे आप किसी एक ज़िले के एक स्कूल में हैं और आपको यहाँ से बहुत दूर किसी ज़िले में आपके बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो इस ज़िले में जहाँ पे बच्चा आपका अभी पढ़ रहा है, यहाँ के आप हेडमास्टर को ये बोल दीजिए कि मेरे को उस ज़िले की उस स्कूल में एडमिशन करवाना है। हेडमास्टर जो यहाँ का है वो इस स्कूल को ड्रॉप डाउन में से स्कूल, ब्लॉक और क्लस्टर और स्कूल निकाल देगा। निकाल करके बच्चे का जो डाटा है उसको एक वर्ड यहाँ पे वहाँ पे यूज़ किया हुआ ट्रांसफ़र, तो वह ट्रांसफ़र पे क्लिक करेगा तो सीधा ही बच्चे का जितना क्रेडेंशियल है वो उस स्कूल में जहाँ पे एडमिशन करवाना चाहते हैं सारा डाटा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। वहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ का जो हेडमास्टर है उनको उसको एक्सेप्ट करना है। ज्यों ही वो एक्सेप्ट करेंगे ऑटोमेटिकली बच्चे का ट्रांसफ़र है इस स्कूल के A ज़िले से B ज़िले में इमीडिएटली हो जाता है। तो इट हार्डली टेक 1 to 2 मिनट जिसके अंदर में हम इसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी होता है कि जैसे हमारी एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें क्लास 1 से 5 चलती है, क्लास 3 के बच्चे को यदि हमें पास हो गए या
4 में ट्रांसफ़र करना है, आपको सिंपल बच्चों को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके अपग्रेड पे क्लिक करिए। जो ही आप अपग्रेड पे क्लिक करेंगे सारे के सारे बच्चों का एडमिशन क्लास 3 से क्लास 4 में हो जाएगा और इनका जितना डेटा है वो सारा का सारा डेटा है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाएगा। संजय जी, इस ऐप के माध्यम से देखने में आया है कि छुट्टियों के प्रबंधन में भी काफ़ी आसानियाँ मिली हैं और जो कागज़ी कार्रवाई अब तक होती आई है खासकर छुट्टियों के संदर्भ में, उससे निजात मिली है। पहले टीचर्स जब छुट्टी के लिए दे हैव टू गिव अ फॉर्मल एप्लीकेशन, वो ब्लॉक लेवल में जाता था, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में जाता, डिस्ट्रिक्ट के बाद हम लोग के पास आते थे फॉर अप्रूवल और या गवर्नमेंट के पास जाते थे। अब ये सिस्टम में ऐसा हो गया कि टीचर्स डायरेक्टली वो ऐप में अप्लाई कर सकते हैं, CCL हो, कैजुअल हो, जो लीव उनको चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं और ये ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन अप्रूव हो जाते हैं। तो सर, अगर हम इसके USP की बात करें ओवरऑल, कि ये जो आपने कि ये सेतु शिक्षा ऐप है, जिस तरीके से ये क्रांतिकारी कदम उठा रहा है पूरे असम के लिए, तो इसकी USP क्या है? आप कैसे आप खुद डिफाइन करेंगे USP को? इसकी जो मेन USP है वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, जिसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम यूज़ करते हैं। तो डेली आप ये समझिए हमारे पास में 48 लाख बच्चे हैं और 2 लाख टीचर है, तो 50 लाख जो आपके में लोगों हैं, उन 50 लाख लोगों की डेली अटेंडेंस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो रही है। ऐसा करने वाला आसाम जो है वो देश का पहला राज्य है। दूसरी बात ये है कि इसमें हमने जैसे आगे बात करी घोस्ट स्टूडेंट की, तो हमने 4 लाख घोस्ट स्टूडेंट आइडेंटिफाई किए और हमने इसका कैलकुलेशन किया कि कितना हम इसका सेविंग कर रहे हैं। तो करीब करीब 100 करोड़ की सेविंग जो है उन घोस्ट स्टूडेंट से, चाहे वो मिड डे मील के थ्रू हो या यूनिफॉर्म के साथ हो या उनको फ्री टेक्स्ट बुक के थ्रू हो, तो लगभग 100 करोड़ रुपए की हमारी एनुअल सेविंग इसके थ्रू आ रही है। और इससे जो डाटा आ रहा है उसको हमने प्लानिंग में बहुत हेल्प हो रहा है। हमें कहाँ टीचर का ट्रांसफ़र करना है, कम PTR से हाई PTR की तरफ हमने ट्रांसफ़र करना है, तो टीचर्स ट्रांसफ़र में हेल्प हो रही है। छोटी छोटी स्कूल्स है जहाँ पे 2 टीचर हैं, 1 टीचर है और 10 बच्चे हैं, तो ऐसे स्कूल को पास के स्कूल में मर्ज करना है, तो कौन सी स्कूल में मर्ज कर सकते हैं, ये हमें डिस्टेंस भी बताता है। ये डिस्टेंस आपको 400 मीटर पे ये स्कूल अवेलेबल है, 600 पे ये है, 1 किलोमीटर पे ये स्कूल है, तो उन स्कूल को हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके साथ में वहाँ पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने टीचर अवेलेबल है, ताकि बच्चा वहाँ जाए तो टीचर अवेलेबल हो और साथ में बैठने के लिए रूम्स अवेलेबल हो, टॉयलेट्स हो, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। तो हमें इस प्लानिंग में बड़ी हेल्प मिल रही है। और जैसे संजय जी ने कहा था कि टीचर्स का रिटायरमेंट है, अब हमें पहले ये नहीं पता था कितने टीचर जून में रिटायर कर रहे हैं, कितने जुलाई में रिटायर कर रहे हैं। अब हमारे पास में सारा रिटायरमेंट का अवेलेबल है कि अगले 3 महीने में इतने टीचर रिटायर कर रहे हैं, अगले 6 महीने में इतने टीचर रिटायर कर रहे हैं। तो टीचर रिटायरमेंट का डाटा हम एडवांस में प्लानिंग कर लेते हैं, ताकि 6 महीने बाद हमें पूरे प्रोसेस में यदि 6 महीने लग रहे हैं तो हम 6 महीने पहले ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दें, ताकि 6 महीने में जितने टीचर रिटायर हो रहे हैं हमारे पास में टीचर इमीडिएटली मिल जाए, ताकि बच्चे की जो शिक्षा है वो टाइमली रिक्रूटमेंट नहीं होने के अभाव में जो प्रभावित होती है वो नहीं हो। संजय जी, अभी श्रीनिवास जी बता रहे थे कि इस ऐप के लिए इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको सिर्फ डाउनलोड इसको कीजिए और इसका फ़ायदा आप उठाइए, तो ये कैसे संभव हो पाया? बेसिकली ये जो डाटा ऑपरेट करता है ऑफलाइन करते हैं, आप अटेंडेंस ऑफलाइन ले सकते हैं, लेकिन अपलोडिंग के लिए आपको नेट कनेक्टिविटी चाहिए होगा। लेकिन ये कैसा होता है कि कुछ कुछ रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर आपका डाटा कनेक्टिविटी कम है सभी। वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज दैट सम सॉर्ट ऑफ डाटा कनेक्शन। जो एरिया में डाटा कनेक्टिविटी थोड़ा सॉफ्ट है या लो है, वो क्या करते हैं, जहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल है टीचर्स वहाँ से ऑफलाइन डाटा कलेक्ट करते हैं, और जब ऑनलाइन मोड में आते हैं जहाँ पर थोड़ा डाटा अवेलेबल है, जहाँ पर आपका वो है कनेक्टिविटी थोड़ा इफेक्टिव है, वहाँ पर आके वो अपलोड कर देते हैं, तब इट बिकम्स अ रियल टाइम डाटा। इसको मैं जस्ट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, मतलब कि आपका ये ऑफलाइन मोड में काम करता है। इवन आप फ्लाइट मोड में जा सकते हैं, फ्लाइट मोड में जा करके आप उस अटेंडेंस को ले लीजिए, क्योंकि कई सारे रिमोट एरिया नेटवर्क पुअर है या नेटवर्क नहीं है। जैसे हमारे 45,000 स्कूल से इसमें से 300 स्कूल का ऐसी जगह पे है जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, या कई जगह पे पुअर कनेक्टिविटी है। तो आप ऑफलाइन मोड में या फ्लाइट मोड में अटेंडेंस ले लीजिए। जो आप अटेंडेंस लेंगे वो आपके हैंडसेट में, मोबाइल हैंडसेट, या हमने 51,000 टैबलेट्स भी दिए हैं स्कूल्स को, तो हर स्कूल के पास 1 से 5 टैबलेट भी है, तो आप उस
उसके अंदर में आपके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप ऑफलाइन या फ्लाइट मोड में हैं तो वो डेटा जो है आपका इसके अंदर में रिकॉर्ड है। और ज्यों ही आप नेटवर्क में जाते हैं आप ऑन कर दीजिए अपने डेटा को ऑन कर दीजिए। ज्यों ही आप ऑन करेंगे वो हमारे जो जितना भी अटेंडेंस का डेटा है वो हमारे सेंट्रल सर्वर में पुश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अटेंडेंस लेने के लिए हमें जरूरत है, अटेंडेंस लेने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जब डेटा एक जगह में सेंट्रल सर्वर में भेजना है तो उस समय हमें नेटवर्क की जरूरत रहेगी, अदरवाइज नेटवर्क की जरूरत नहीं रहेगी। श्रीनिवास जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं चुनौतियों पर जानना चाहूँगा, चैलेंजेस पर, कि किस तरह का चैलेंज आपके सामने आया इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे? आईटी इम्प्लीमेंटेशन में टीपू जी की हमेशा चैलेंजेस होता है कि रिक्वायरमेंट्स का क्लैरिटी जहां नहीं मिलता है। रिक्वायरमेंट्स में यहाँ तो अपने को ना एडवांटेज ये हुआ था कि अपने को रिक्वायरमेंट्स क्लैरिटी मिला था, अटेंडेंस ऐसे चाहिए हमें, ये चैलेंजेस हो गए जैसे कि इंटरनेट हो या लो कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल्स हो सकता है कुछ टीचर्स के पास, जो उसका खुद का फोन यूज करना चाहता है उसका मोबाइल लो कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। तो ऐसे चैलेंजेस थे। हम लोग जब मिला था इंफॉर्मेशन, हम लोग जब एक सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया था, वी हैव टेकन ऑल दिस, ये सारे के सारे चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग सोल्यूशन डिजाइन किया था। सेकंड था कि सिक्योरिटी कंसर्न, सबका ये होता है कि मेरा डेटा कहीं जा रहा है। मैं फेशियल रिकग्नाइजेशन बोलते तो सब लोग जानते हैं कि सब लोग सोचते हैं कि मेरा फोटो ले रहा है और ना कुछ कर रहा है, मुझे कुछ आजकल तो ये मॉर्फिंग का इशू भी चल रहा है। तो यहाँ जो हम लोग बनाया था एल्गोरिथम, हम लोग फोटो को यूज ही नहीं करते। हम लोग जैसे सर ने बताया था कि 72 पॉइंट्स का एल्गोरिथम बनाते हैं यूजिंग फेस। हर एक फेस को एक यूनिक आईडी बनता है, जैसे कि हम लोग रोज यूज करते हैं कि जैसे बच्चे को ना हम लोग यूकेजी या फर्स्ट क्लास में एनरोल किया, अगर रेगुलरली यूज कर रहा है तो ना फिर से री एनरोल करने के, उसका फेस एनरोल करने की जरूरत ही नहीं है, वो सीख जाएगा। ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में सीखते जाएगा। कई राज्यों में असम का ये जो ऐप है वो एक नमूने के तौर पर लोग इसको अपना रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। फिलहाल इस ख़ास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।